کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ اے دوست، تیرے مقصد کا حاصل ہونا تیرے دل کے رونے پر موقوف ہے۔ گڑگڑائے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے تو اپنی آنکھ کو اپنے جسم کی ضرورت کے لیے رلا۔ اچھے انسان اور اللہ کے نیک بندے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے زخم جلدی بڑھ جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کام میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہزار شکر کے دل کی حالتیں راضی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ نصیب دلائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اب انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کچھ بھی آباد اور برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے اور نہ اختیار میں۔ کسی کام کے ہو جانے کا حکم اور پھر اس کام کا ہو جانا رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اتنا نہ کر، نہ اتنے جذبات میں رہیں، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہیں۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہیں۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردے ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ خود محبت ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، چاہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت افضل ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز صلہ رحمی کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے، ہر چیز مدد پر آمادہ ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے ارادے پر ہے۔ تمہاری روح کا ارادہ محبت ہے، تمہاری روح کی طلب محبت ہے۔ ہدایت محبت کی سمجھ دیتی ہے اور محبت گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ جب وہ رب ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کو بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے حقدار ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا آپ کو دربدر کر دیتا ہے، نہ آپ آگے کے رہتے ہیں اور نہ پیچھے کے۔ اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ اعلیٰ انسانیت کا اصول دو لفظ میں یہ ہے: سادہ زندگی اور اونچی سوچ۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، باتوں میں روح تب تک نہیں آتی جب تک انسان کے اندر کی روح میں طاقت نہ ہو۔ چوٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ راستے کی خاک سے رزق مل جائے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے عاجز مزاج بنا۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے۔ اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور یقینوں پر ہے۔
यही इंसान की खुसूसियत है, वरना गोश्त पोस्त तो दूसरे हैवानात में भी है। अगर तेरी फिक्र फूल जैसी है तो तू गुलजार है, और अगर गलाजत यानी गंदगी की तरह है तो तू बाहर फेंक दिया जाएगा। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब के सामने तौबा करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। अगर तुम मुस्कुराहट के बाद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो तुम्हें यह हक भी नहीं कि अपने हर आंसू की शिकायत उससे करो। यकीन से बढ़कर यकीन, नफरत की सब निशानियां मिलने के बावजूद खुदा की मोहब्बत पर यकीन, कब्र की सब निशानियां दिखाई देने के बावजूद उसके रहम पर यकीन। हमारी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, सारी दुनिया के कहने के बावजूद उसकी शिफा पर यकीन। जो ज़मीन से नहीं होता वो आसमान से होता है, सिर्फ रब के हुक्म से होता है, इस गवाही पर यकीन। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो उस इंसान से गुफ्तगू करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आप ही को कसूरवार ठहराएगा। शाखों से पत्तों का गिरना महज मौसम की तब्दीली का पेश खेमा नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि हर चीज़ फ़ानी है और तब्दीली कायनात का हुस्न है, और हमने भी एक दिन ज़िंदगी की शाख से ऐसे ही टूट कर गिर जाना है। जिस्मानी बीमारियां परहेज से जाती हैं और रूहानी बीमारियां परहेजगारी से। कभी कभी कोई वजह भी नहीं होती, बस यूं ही इंसान जिंदगी के पहिए में रेशम के थान की तरह उलझता चला जाता है। जब रिश्ते बादलों की तरह उड़ने लगे तो उन्हें देखने की बजाय आसमान पर रब की तरफ देखें, जिंदगी खत्म नहीं होगी। इशफाक अहमद फरमाते हैं, मैंने कहा कोई मेरे दिल की बात नहीं जानता, तो फिर एक दिन मैंने सूरतुल अनफाल में पढ़ा कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के बीच में हाइल है। कभी कभी बावजूद आपकी लाख कोशिश की, खुदा आपके हालात इसलिए नहीं बदलता कि वो आपका दिल बदलना चाहता है। खुदा आपके हालात इसलिए नहीं बदलता कि वो आपका दिल बदलना चाहता है। तालीम का मकसद ये नहीं होता कि बहुत सारी हकीकतें जान ली जाएं। तालीम का मकसद ये होता है कि दिमाग की इस तरह तरबियत हो जाए कि जो कुछ किताब में नहीं है वो भी समझ में आ सके। वो चीज़ जो आप माँ बाप के सामने नहीं ले जाना चाहते वो बुरी है। वो काम जो माँ बाप के सामने नहीं कर सकते वो गुनाह है। वो बात जो आप चाहते हैं कि कोई और ना देखे वो गलती है। जब इंसान मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो तौबा के ज़रिए अपने लिए आरामगाह बनाने का सोचता है। मुसीबत से निजात पाते ही अपनी तौबा को भूल जाता है। अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना नेमत से भी ज़्यादा अच्छा है। एक मंसूबा तुम बनाते हो और एक मंसूबा वो बनाता है। जब तुम उसकी मंसूबा बंदी पर यकीन नहीं रखते तो वो तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में थका देता है। इसलिए नहीं कि तुम्हें तकलीफ हो, बल्कि इसलिए कि तुम जान सको कि उससे ज़्यादा दानाई और हिकमत वाला मंसूबा साज कोई नहीं। जब इंसान बंदे के जज्बे को काबू कर लेता है तो वहाँ उसे रुबूबियत की पहचान शुरू हो जाती है। जो इंसान वाकई मुतवक्किल है यानी भरोसा रखने वाला है, उसे तो अपने इस यकीन होने का एहसास भी नहीं होता। रूहानियत में मर्द कामिल वो है जो हर वक्त इल्म की तलाश में रहता है। नेकी पर लगे रहें, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब और दोस्ती जीतने के लिए नेकी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। नेक और परहेजगार लोगों में 3 सिफात बहुत जाहिर और नुमायाँ होती हैं। दरगुजर करना और माफ़ करने की सिफत, अपनी ज़रूरतों को पीछे डालकर दूसरों के काम आने की सिफत, दस्तरखान बढ़ा देने की यानी लोगों के लिए फैला देने की सिफत। अल्लाह के बंदे पर यह भी एक बड़ी पाबंदी है कि अगर वो फाकिद से भी हो तो अपने पास आने वालों पर उसका इजहार ना होने दें।
अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो कोई खौफ या डर और दुनियावी लज्जतें हमें सीधी राह से नहीं हटा सकती। अल्लाह के सच्चे बंदों की तरबियत यही होती है कि दूसरों का भला भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। अगर इंसान जलती आग पर भी बैठा हो और कोई उससे हाल पूछ ले तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े में हूँ। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मुसीबतों से जल्द निकाल लेता है। जब अक्ल और तदबीर और फ़हम व फ़िरासत पैदा हो जाए तो इंसान को अच्छे में से सबसे ज़्यादा अच्छा परखने का हुनर आ जाता है। अल्लाह ताला को ऐसे इंसान की निस्बत जिसने सारी ज़िंदगी गुनाह नहीं किए, वो शख्स ज़्यादा पसंद है जिसने गुनाह किए, फिर शर्मिंदा हुआ और तौबा कर ली। जहाँ एहतराम होता है वहाँ खामोशी हो जाती है। बेहतरीन रोज़ी वो है जो आप अपने हाथ से कमा कर खाएं। जिस शख्स ने अपने अंदर अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल पैदा कर लिया, वो सोचों और शुबहात से दूर हो गया। जब हम सच की वजह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हकीकत तलाश कर लेते हैं। अगर हम दिल को गंदगी और आलाइशों से पाक कर लें तो वहाँ रब रहने लगेगा और हमें इत्मीनान महसूस होगा। अल्लाह के हुक्म किए हुए कामों को बजा लाना और मना किए हुए कामों से बचे रहना, यही परहेजगारी और तकवा है। इंसान सोच और फिक्र से जितना दूर और जितना खुश रहेगा उतना ही बुढ़ापे से दूर रहेगा। कि जो सोच और फिक्र से दूर हो वो खुश भी हो, और जो खुश हो वो सोच और फिक्र से दूर भी हो। रब ताला की सुन्नत ये है कि वो हर एक के पर्दे रखता है। रब ताला की मोहब्बत और दोस्ती का तरीका गौर और फिक्र है। रिस्क वो है जो इंसान के तकदीर में लिख दिया गया और इंसान को मिलकर रहेगा। इसी रिस्क के बारे में हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया, कोई शख्स मर नहीं सकता उस वक्त तक कि जब तक वो अपने रिस्क का आखिरी निवाला ना खा ले। हर वो इल्म जिससे इंसानों को फ़ायदा हो वो सही इल्म और फ़ायदेमंद इल्म है। मिले हुए पर राज़ी रहना ये एक ऐसा हरबा है जिससे इंसान के अंदर शुजाअत यानी बहादुरी पैदा होती है। जब हम नफ्स की मानने लगते हैं तो हमारा दिल और हमारा ज़मीर हमें जीने नहीं देता। हम हर तरह के मुश्किल हालात में साबित कदम रहते हैं तो फिर इनामात की बारिश होती है। अगर इंसान बाअमन है तो उसकी ज़बान में तासीर होगी और उसकी ज़बान से अदा होने वाली हर बात दिल में उतरती चली जाएगी। सच्चाई के रास्ते में तकलीफ़ें और दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन इनके खौफ से सच्चाई और दयानतदारी का रास्ता छोड़ नहीं देना। अल्लाह के बंदे की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद ये होता है कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं, लेकिन दूसरों के हुकूक की अदायगी मुझ पर लाजिम है। जब क़नाअत इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो इंसान को जो कुछ मयस्सर है उस पर राज़ी हो जाता है। अल्लाह का बंदा अपने पास आने वाले लोगों को धुतकार नहीं सकता क्योंकि ये रवैया रब को पसंद नहीं। इंसान अपने जैसे इंसान के सामने हाथ फैलाता है तो वो अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखता, अपने मकाम से नीचे आ जाता है। लेकिन अगर हम इनकार कर देंगे तो हम भी तो उसी के मकाम पर आ जाएंगे। अगर किसी की ज़बान की वजह से रब के किसी बंदे का दिल दुख जाए और वो बंदा पलटकर ज़्यादती करने वाले को कुछ ना कहे, खामोश रहे, तो रब खुद उसकी मदद को आता है। जिस इंसान में ईसार और कुर्बानी का जज्बा हो वो लालच में नहीं आता। पेट खाली हो तो नफ्स और उसकी ख्वाहिशें कमज़ोर हो जाती हैं। इल्म को अक्लमंदी से इस्तेमाल करने का नाम हिकमत है।
इंसान में चिड़चिड़ापन और गुस्सा तब आता है जब उसमें मायूसी और नाकामी का अंसुर पाया जाए। इबादत से पारसाई मिलती है और नेकी से रब मिलता है। बेअमली, काहिली और सुस्ती अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है। तारीफ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुंह पर की गई तारीफ ऐसा जहर है जो इंसान को मार देता है। अल्लाह के कुर्ब और रिज़ा के ख्वाहिशमंद दुनिया को दिल में जगह नहीं देते। रूह अगर बंदी हो जाए तो बिगाड़ पैदा हो जाता है। जो अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह भाग कर उसकी तरफ आता है। हम अल्लाह की तरफ नहीं, दुनिया की तरफ आते हैं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सिर्फ अल्लाह की तरफ आए और अल्लाह उसका इस्तकबाल ना करे। कब्रों में कोई काम नहीं होता। कब्रों वाले क़यामत तक पछताते हैं कि दुनिया में क्यों काम ना किया, और तमाम कामों से अफजल काम अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग है। अपना जनाजा पढ़कर ही बका का ज़ुहूर होता है। ना मानो तो पढ़कर देख लो। पूछा गया, सिर्फ इस बात पर कैसे मुतमईन हो जाए कि ज़मीन और आसमान की हर मखलूक की हर बात कोई कैसे सुन सकता है? जवाब दिया गया, सुनने वाला हर किसी के अंदर मौजूद है। रूह जब सैर हो जाती है तो परवाज करने लगती है, और नफ्स जब सैर हो जाता है तो सो जाता है। अल्लाह ताला की तलाश में भटकने फिरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर देखने वाले निगाह से देखो तो अल्लाह ताला शहरक से ज़्यादा करीब तुमको मिलेगा। अल्लाह की मारिफत को पाने और अपने नफ्स की नफ़ी के लिए पहला कदम क्या है? जब हम अल्लाह से उसकी रहमत मांगते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ए अल्लाह, हमें माफ़ कर दें। और हर रूहानी सफ़र का सबसे पहला कदम यही होता है। गुस्सा दरअसल मोहब्बत का दुश्मन है, क्योंकि महबूब पर कभी गुस्सा नहीं आता। इसलिए दुआ करो कि या अल्लाह, गुस्से में मुझसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जो ज़िंदगी में पछतावा बन जाए, क्योंकि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। अल्लाह से जिन लोगों का ताल्लुक़ ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत उतनी ही ज़्यादा पैदा होती है, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता वो अपना बदला खुद ले लेता है। जिस शख्स की आरज़ू जितनी मुखलिस होती जाएगी, उतना ही वो अल्लाह के करीब होता जाएगा। आपको एहसास नहीं होता कि सात कायनातों का रब आपकी मदद के लिए मौजूद है। आप क्यों बेचारगी महसूस करते हो? ये सिर्फ इस वजह से है कि हमें हर चीज़ का एतबार है, मगर ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर खुदा का एतबार नहीं। आज तुझे ये ना बताएं कि तेरे दीन का सबसे बड़ा फितना क्या है? माल का ज़ख़ीरा। अहले इल्म से, यानी इल्म वालों से तो वो चीज़ हासिल करो जो कहीं किताबों में नहीं मिलती, और ना ही जिसे कोशिश से हम हासिल कर सकते हैं। मुस्बत सोच के बाद इंसान किसी की गलती की तरफ उंगली नहीं उठाता, बल्कि उसे ठीक करने में लग जाता है, और कहीं उस गलती का जिक्र भी नहीं करता। जो अल्लाह का बंदा गौर और फिक्र नहीं करता, वो रूहानियत के आला मकाम पर फाइज नहीं हो सकता। नफ्स को ठिकाने पर रखने का बेहतरीन तरीका यही है कि रब को हर जगह मौजूद समझा जाए। अल्लाह के बंदे की मजलिस में बैठकर उसे तवज्जो से सुना जाए, ज़बान को बंद रखा जाए और आँखें और कान खुले रखे जाएं। जो सच्ची मोहब्बत रब ताला के लिए इंसान के दिल में पैदा होती है, वो मुलाकात की तमन्ना रखती है। हर वो काम जो जल्दी में किया जाए
اور آسانی سے اس کا نتیجہ حاصل کر لیا جائے، اس کام کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں باعزت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکم کردہ کاموں پر عمل کرنا ہوگا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال لیں تو رب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا۔ اللہ کا بندہ دینے پر یقین رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمارے اس طرز عمل سے معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے کافی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب میں ہوتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا ہونا ہی میرے من کی بربادی کی وجہ ہے۔ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ملا نہ پیر نہ صوفی نہ فقیر، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، لوگ ہی لوگوں کو کہنے اور کرنے پر مجبور کیا کرتے ہیں۔ سوچ کر بولا کرو، سوچ کر لکھا کرو، مٹی کو مٹی اور سونے کو سونا کہا کرو، ملاوٹ مت کیا کرو۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی کے بال تک تیرے جسم کا ہر حصہ ایک ضروری حصہ ہے۔ بعض بول بندے کے نہیں اللہ کے ہوتے ہیں اور حق ہی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جسم کا حسین ترین حصہ آنکھ ہے، سب سے پہلے پانی بن کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اے فضل سے بے خبر انسان، فضل مانگ، فضل کے ہمراہ ہر چیز ہوتی ہے اور ہر ہیلہ اور وسیلہ فضل ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ لوگو اللہ کی طرف لوٹ چلو، لوگو یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی پھر کبھی لوٹ کر آنا ہے۔ لوگو اپنے اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے رہو۔ ہم مذہب کے لیے جھگڑتے ہیں، مذہب کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرتے کسی بھی قسم کی کوئی بے لذتی اور ناپسندیدگی کبھی پیدا نہ ہوتی، محبت کا دور دورہ ہوتا۔ جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے، تو پورا مومن نہیں بن سکتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے کسی بھائی کو کافر کہنا کسی بھی طرح کسی کو روا نہیں۔ ہم نے کسی کافر کو تو کیا مسلمان بنانا تھا، مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر رول رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جو بھی جماعت اللہ کے دین یعنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اللہ کے لیے، صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتی ہے، دعوت کی تمام ادائیں سمٹ کر اس پر چھا جاتی ہیں۔ اور ہم سب اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، کسی اور کام کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ جس بھی قوم نے ترقی کی متحد ہو کر کی، قومی اتحاد ہی کی بدولت کی۔ فرقہ قوم کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پرندوں کی دنیا میں کوا گندگی خور اور ناپاک پرندہ ہے، لیکن اپنی قوم کے اتحاد کا علمبردار ہے۔ ذرا سی آواز لگاتا ہے تو ارد گرد کے تمام کوے آن کی آن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فضول اور لو چیزوں سے بچنا عین حکمت ہے، اور باتیں اکثر لو اور فضول ہوتی ہیں۔ ہجرت کا پہلا قدم سکون ہے، جس ہجرت میں سکون نہیں گویا وہ نامکمل ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، عقل مند اور ذہین اور فطین لوگوں کو دیکھا ہے کہ معاشرے اور خاندان کے اثرات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس ڈگر پر ماحول نے ان کو ڈال دیا ہے اسی پر چلے جا رہے ہیں،
और उसी को हक समझते हैं। कुरान मजीद इसको भी गुमराही का अहम सबब बताता है। जब अल्लाह ताला तुझ पर मेहरबान है तो तू भी उसके बंदों पर मेहरबान हो जा। नेक कामों की कमाई बुरे कामों ने ही खाई है। ये खुले लफ्जों में कहे कि रात दिन की कमाई झूठ, गीबत, चोली और हसद ही ने खाई है। मत भूल कि वो दिन आने वाला है जिस दिन की ये उंगलियां कोई हरकत ना कर सकेंगी। इस वक्त को गनीमत जान और इनसे वो काम ले जो तेरी कब्र में तेरे काम आए, और वो काम ले जिससे कि मिल्लत को यानी उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा पहुँचे। तेरी नकलो हरकत नापसंद है, नामाकूल और नामकबूल है। सोच की बात है, बाज आजा, आज बदन अभी बदन, ये वक्त की आखिरी पुकार है। माजी गुजर चुका, जैसे भी गुजरा गुजर चुका। माजी से इबरत हासिल कर, मुस्तकबिल की किसी को खबर नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ खबर नहीं। माजी की परवाह मत कर और हाल को ज़ाय मत कर। अगर कोई शख्स कम वक्त में ज़्यादा इल्म हासिल करना और रब ताला से करीब होना चाहता है तो वो कुरान पाक का इल्म हासिल करे। इंसान हिदायत का रास्ता उस वक्त तक नहीं पकड़ सकता जब तक दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल न जाए। रूहानियत हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इंसान के अंदर का ताल्लुक रब से जुड़ जाए। अब अपने दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान मंद हो और इस एहसान मंदी के इजहार के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजें। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की पसंदीदा रास्ते पर चलने के लिए अगर हम नफ्स पर जब्र करते हैं तो इसका बेपनाह अज्र है। मायूसी इंसान पर उस वक्त आ रही होती हैं जब वो रब ताला के वजूद और उसके कादिर मुतलक होने को तो मानता है लेकिन उस पर भरोसा ना हो। सच्चाई और दयानतदारी की आवाज़ हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, हाँ एक आदमी ही ऐसा करे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आप ये परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्यों? फरमाया, दुनिया में अकेला आया, दुनिया से अकेला जाऊंगा, कब्र में पड़ूंगा तो अकेला, हिसाब के लिए पेश होऊंगा तो अकेला, जन्नत में जाऊंगा तो अकेला, खुदा न खास्ता दोज़ख में गया तो अकेला, तो लोग कहाँ से आ गए? तारीफ उस रब की है जिसकी तारीफ के लायक कोई ज़ात नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ न आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिल का सुकून बस उसी की याद में है। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। हाल यानी मौजूदा वक्त की भी फितरत है जो कभी नहीं बदलती। जिसने भी किसी हाल का खुशी के साथ इस्तकबाल किया, हाल ने उसे खुशकिस्मत बना दिया। शुक्रगुजार को ही शुक्र की तौफीक इनायत होती है, ना शुक्र को नहीं। जो तुम्हें और तुम्हारे बुरे अमाल को जानता है वो पकड़ कर सकता है, इसके बावजूद नहीं करता। ये तरबुजर की इंतहा है, बुरदुबारी की हद है, और बुरदुबारी भी कई एतबार से और हर एतबार से हर चीज़ पर छाई हुई है। मेहनत की जज़ा शाही और ऐश व इशरत की सज़ा तबाही होती है। जब तक तूने बुराई से बाज नहीं रहना, बुराई ने भी कभी बाज नहीं रहना। बुराई कोई चीज़ नहीं, तेरी करतूत ही का नाम बुराई है। जब तुम चाहते हो उस वक्त नहीं, जब वो चाहते हैं तब काम होता है।
आजमाइश ज़िंदगी की एक मंजिल है और हर हाल में सब्र करना अल्लाह की इनायत है। जद्दोजहद कोशिश के साथ अगर काबिलियत भी हो तो नूरुन अला नूर है, वरना कोशिश और जद्दोजहद काबिलियत की मोहताज नहीं होती। नेकी तेरी आखिरत का सरमाया है, नायाब और ज़रूरी सरमाया, इसे यूं ही ज़ाय मत कर। एक परिंदा है कि जब मौज में आकर मल्हार गाता है, बारिश बरसने लगती है कि बात सुनी सुनाई है, और जिक्र करने वाला जिसका जिक्र करता हो उसकी याद में गुम होकर जिक्र करता है तो रहमत बरसने लगती है, ये बात देखी हुई है। दुनियादार दीनदार का दोस्त नहीं हो सकता, मगर दुनियावी अवलास के लिए उसकी दोस्ती पहाड़ की चोटी पर जमी हुई बर्फ की तरह है। चंद लम्हों की मेहमान होती है, इधर धूप चमकी उधर ये पिघली। अल्लाह ताला से मांगने वाली चीज़ ये है कि उसकी रज़ा मांगो, ज़िंदगी की आसानी मांगो, राहत और आसाइश की बजाय रज़ा मांगो, और ये कहो कि हमें अपनी ज़िंदगी पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमा। बेदिल ना हुआ जब तक मुसलमान माएँ बच्चे जनती रहेंगी, सलाहुद्दीन के फिर से आने की उम्मीद है।